এই সুন্দর সময়, এই সুন্দর দিন আমাদের দিয়েছেন। আর যখন আমরা এই বিবাহের শুভ অনুষ্ঠানে এসে উপস্থিত হতে পেরেছি, আসুন আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানকে প্রভুর হাতে সমর্পণ করি। আর এই সময় আমি অনুরোধ করি আমাদের দিশাগর মন্ডলীর প্রাচীন বিলাল চৌধুরী বাবুকে অনুরোধ করি এখানে এসে প্রার্থনা করে আর এই সভাকে প্রভুর চরণে সমর্পণ করার জন্য। সকাল থেকে পর্যন্ত সুন্দরভাবে অতিবাহিত করে নিয়ে এসছো, তার জন্য তোমার আমি ধন্যবাদ জানাই। তুমি আমাদের জন্য তোমার একমাত্র পুত্র যে সর্বদা তোমার দক্ষিণে বিরাজমান ছিল, তাকে সম্পূর্ণ মানুষের জন্য একবারের জন্য অনন্তকালের জন্য তুমি প্রদান করেছো, তার জন্য তোমায় অনেক অনেক ধন্যবাদ। সাথে সাথে ধন্যবাদ জানাই তার কথা তো উদ্দেশ্য তোমায়, তুমি এই নোংরা গল্প পৃথিবীতে এসেছিলে কেবলই আমাদের উদ্ধার করো না, যার ফলস্বরূপ আজ আমরা দেখতে পাই তোমাকে বিশ্বাস করো না, আমরা সেই দূরকে নিরাপদ নির্ভয় নিশ্চিন্তে আমরা জীবনযাপন করতে পারি কেবলই তোমাকে বিশ্বাস করো না। তার জন্য তোমার অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে প্রার্থনা জানাই আজ আমরা যখন এখানে উপস্থিত হই, আমরা সেই শুভ বিবাহ উপলক্ষে আমরা এখানে উপস্থিত হই এবং আমরা দেখি এই যে তুমি আমাদের সাথে আছো, তুমি মস্তক রূপে প্রতিটি বিষয় পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করছো। আমরা তোমার বাক্যে দেখেছি যে বিবাহ গৃহে প্রভু থাকে, সেখানে কোনো কিছুর পুরো অভাব হয় না। তথ্য আজ আমরা তোমার হাতে গচ্ছিত, সুরক্ষিত, নিরাপদ। এই নিশ্চয়তা কেবলই তোমাকে আমরা প্রাপ্ত হয়েছি, তার জন্য তোমায় অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। প্রার্থনা জানাই বিবাহের যে কার্যকরিতা আছে তা তুমি তোমার আশীর্বাদে সম্পূর্ণ হতে তুমি সাহায্য করো এবং প্রতিটি বিষয় দ্বারা তুমি মহিমান্বিত, তুমি গৌরবান্বিত হও। আজ আমরা কেবলই প্রার্থনা করি এই নয় যে এই দুটি আত্মা এক হচ্ছে এবং তোমার দৃষ্টিতে যা বহুমূল্যতা, তার জন্য আমরা প্রার্থনা জানাই তৃতীয় সূত্র হিসেবে তুমি এক হয়ে এই পরিবারকে আগামী দিন তোমার জন্য গঠিত এবং সম্পৃক্ত করবে সে বিশ্বাস দিয়েছো, তার জন্য তোমায় অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। এখন এই বিবাহের যাবতীয় কার্য তোমার দৃষ্টিতে যা যথাযথ হয় সেই মতো তুমি প্রতিটি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করো, প্রতিটি বিষয় দ্বারা তুমি মহিমান্বিত, তুমি গৌরবান্বিত হবে। এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা আমাদের প্রাণকর্তা প্রভু যিশুর মাধ্যমে পিতাঈশ্বরের চরণতলে অর্পণ করি, দয়া করে শ্রবণ ও গ্রাহ্য করুন। আমেন। আসুন আমরা এখন একটা গান করি, আমাদের যে সংস্কৃত রয়েছে তার 2 সংখ্যার গান জব পহলি শাদি হুই, এই গানটি আমরা করি।
বিবাহের অনুষ্ঠানে আর প্রভু তিনি আমাদের আসতে সাহায্য করেছেন। আর বিবাহের অনুষ্ঠান, আনন্দের অনুষ্ঠান, খুশির অনুষ্ঠান, গানের সময়। আর এখন আমরা একটা বিশেষ গান শুনবো। আমাদের গ্রুম পার্টি বরের পক্ষ থেকে যারা এসেছেন তাদের কাছ থেকে আমরা একটা বিশেষ गाना सुनेंगे। ना एक विशेष गाना हम लोग सुनेंगे बारात पार्टी से। कोई भी विशेष समय जब होता है तो परमेश्वर का वचन का छोड़ के हम लोग कुछ नहीं करते हैं। इसलिए अभी समय है परमेश्वर का वचन से पढ़ने का।
और इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय हम लोग 22 से 33 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। इफिसियों 5 अध्याय 22 থেকে 33 পদ আমরা এখন পাঠ করব। আর আমি অনুরোধ করি এই সময় প্রবর দাস রাজীব দাস তিনি এখন এখানে আসবেন আর তিনি এই অংশটি পাঠ করবেন আর প্রার্থনায় আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবেন। ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করি। ইফিসীয় তার 5 অধ্যায় 22 পদ থেকে। নারীগণ, তোমরা যেমন প্রভুর তেমনি নিজ নিজ স্বামীর বশীভূত হও, কেননা স্বামী স্ত্রীর মস্তক, যেমন খ্রিস্ট মণ্ডলীর মস্তক। তিনি আবার দেহের ত্রাণকর্তা, কিন্তু মণ্ডলী যেমন খ্রিস্টের বশীভূত, তেমনি নারীগণ সর্ববিষয়ে আপন আপন স্বামীর বশীভূত হও। স্বামীরা, তোমরা আপন আপন স্ত্রীকে সেইরূপ প্রেম করো, যেমন খ্রিস্ট মণ্ডলীকে প্রেম করিলেন, আর তাহার নিমিত্ত আপনাকে প্রদান করিলেন, যেন তিনি জলস্নান দ্বারা বাক্যে তাহাকে সূচি করিয়া পবিত্র করেন, যেন আপনি আপনার কাছে মণ্ডলীকে প্রতিপান্বিত অবস্থায় উপস্থিত করেন, যেন তাহার কলঙ্ক বা সংকোচ বা এই প্রকার আর কোনো কিছু না থাকে, বরং সে যেন পবিত্র ও আনন্দনীয় হয়। এই রূপে স্বামীরাও আপন আপন স্ত্রীকে আপন আপন দেহ বলিয়া প্রেম করিতে বাধ্য। আপন স্ত্রীকে যে প্রেম করেন সে আপনাকেই প্রেম করেন। কেহ তো কখনো নিজ মাংসের প্রতি দেশ করে নাই, বরং সকলে তাহার ভরণ পোষণ ও লালন পালন করেন, যেমন খ্রিস্ট মণ্ডলীর প্রতি করিতেছেন। কেননা আমরা তাহারই দেহের অঙ্গ। এই জন্য মনুষ্য আপন পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, এবং সেই দুইজন একাঙ্গ হইবে। এই নিবৃত্তত্ব মহৎ, কিন্তু আমি খ্রিস্টের উদ্দেশ্যে ও মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে ইহা কহিলাম। তথাপি তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন স্ত্রীকে তদ্রূপ আপনার মতো প্রেম করো, কিন্তু স্ত্রীর উচিত যেন সে স্বামীকে ভয় করেন। আসুন আমরা প্রার্থনা করি। আমাদের পবিত্র মহান স্বর্গস্থ পিতা, আমরা তোমায় ধন্যবাদ দিই এই সুন্দর আনন্দের মুহূর্তে। প্রভু, তুমি আমাদেরকে উপস্থিত করেছ। করুণা ঈশ্বর, আমরা তোমায় ধন্যবাদ দিই তোমার অনুগ্রহ, তোমার দয়া, তোমার আশীর্বাদের জন্য। বিশেষ করে প্রভু আমরা ধন্যবাদ দিই ভাই রাবি এবং ইংলিশের জন্য। প্রভু, তুমি এই সুন্দর সময় দিয়েছ, যখন প্রভু তারা এক পরিবার হতে চলেছে প্রভু। এবং পবিত্র ঈশ্বর, আমরা তোমার অনুগ্রহ, তোমার আশীর্বাদ যাত্রা করি প্রভু। শুধু তাই নয়, আগামী সময় সমস্ত কার্যক্রমের উপরে প্রভু তোমার অনুগ্রহ, তোমার আশীর্বাদে হাতটা রাখো প্রভু। এবং সমস্ত কিছুতে তোমার অনুগ্রহ আমরা দেখতে চাই। সমস্ত গৌরব মহিমা আমরা তোমায় দিই প্রভু। তোমার বাক্য যখন পরিবেশন হয় প্রভু, তুমি তাতেও আশীর্বাদ করো। মুক্তিদাতা দয়ালু প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে প্রার্থনা চাই, দয়া করে তুমি শ্রবণ গ্রহণ করো। আসলে আমরা এখন আরেকটা গান করি। আমাদের যে সং শীট রয়েছে তার তিন সংখ্যা গান, জীবন কি রাহ में तू हर तकलीफों से तू। এই গানটি আমরা সবাই করব। আমাদের কয়েক মিনিট করে লিড করবে। Thank you.
हर तकलीफों से तू ऐ मेरे यीशु तू চালাতা যা। প্রভু তিনি সমস্ত জীবনের পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে তিনি যেন চালিয়ে নিয়ে যান, আমাদের যেমন চালিয়ে নিয়ে গেছেন। আজকে এই রবি আর ইউনেস তারা একটা নতুন পরিবার, একটা জীবনের নতুন অধ্যায় তারা শুরু করবে। আর ঈশ্বরের কাছে এটা আমাদের প্রার্থনা, প্রভু তাদের এগিয়ে নিয়ে চলুন। তো যেমন আমি বলেছি, বিবাহ বিয়ে আনন্দের সময়। আর আমরা আরেকটা গান শুনবো এখন কনের বাড়ি থেকে, না মেয়ের বাড়ি থেকে আমরা আরেকটা স্পেশাল গান শুনবো। দুটি জীবনে যে ফুল ফোটে, যিশু যে সুরভি নারী, দোহার মন মনে পাখি গায়ে, এরা যিশুরই, যিশুর দেরি। দুটি জীবনে
तुमसा कोई नहीं यीशु मसीह हो वही बात गाए आसमान गाए यीशु मसीह हो वही बात गाए आसमान गाए तुमसा कोई नहीं तुमसा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं থ্যাংক ইউ। একটা প্রবাদ আছে যে 1 লক্ষ কথা না হলে নাকি বিয়ে হয় না। 1 লক্ষ কথা কথা এটা ওরকমই একটা প্রবাদ আছে, অনেক কথা না হলে বিয়ে হয় না। तो जब बिए बाड़ी হয়, जब शादी के घर होती है तो बहुत सारे बातें होती है, অনেক কথা হয়, এই কথা বলছে সেই কথা বলছে, কতজনের কত কথা থাকে, কিন্তু সব কথার থেকে যে কথাটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो परमेश्वर की बात है। जब शादी होती है, যে কোনো অনুষ্ঠান হয়, তাতে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা আর সেটা হচ্ছে ঈশ্বরের কথা। আর প্রভু তিনি যে কথা বিশেষ সময়ে তার সন্তানদেরকে বিশেষ করে যাদের জন্য আজকের এই আমাদের এই উপস্থিতি আর তাদের ঈশ্বর তিনি কি কথা বলতে চান। তো এখন সময় হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য থেকে শোনার, কিন্তু তার পূর্বে আমাদের আমি অনুরোধ করতে চাই ব্রাদার রানা কান্ত শেখরকে, আর তিনি এগিয়ে আসবেন আর এগিয়ে এসে আর তিনি ঈশ্বরের বাক্যের জন্য তিনি प्रार्थना करें। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ ब्रदर राना कांत शेखर को, वो आगे आएंगे और परमेश्वर के वचन के लिए वो दुआ करेंगे। पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आप धन्य कह रहे परमेश्वर हैं, आप आदर महिमा और बड़ाई की परमेश्वर हैं। विशेषकर हम प्रार्थना करना चाहते हैं आपके समय के लिए, ये सुंदर और अच्छा समय आपने हमारे जीवन में दिया है। आपके वचन के लिए आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, आज के वचनों के द्वारा आप हम सभी को उन अभेद बातों को बताइएगा जिनको हम समझ के अपने हृदय में रख के अपने जीवन में एक अच्छा मार्ग चले भाई खुदावन। और विशेष में प्रार्थना करते हैं भाई रवि के लिए और यूनुस के लिए भाई खुदावन, आज के वचनों के द्वारा प्रभु ये अपने जीवन में अपने वैवाहिक जीवन आज जब इनका आपसे शुरू होगा तो आने वाले समय में आने वाले जीवन प्रभु इनके जीवनों से आपके नाम को महिमा मिले और ये हमेशा आपसे प्रेम करें, आप में लिपटे रहें, आपके वचनों के मोती बहुत सारी आत्माओं में बिखरते रहें। प्रभु दया आपसे हम भी चाहते हैं प्यारे खुदावन, और आज के वचनों के द्वारा हम सबों को बड़ी आप आशीष और बरकत दीजिएगा। प्रार्थना यीशु आपके नाम से आमीन। আজকে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের মধ্যে ব্রাদার শাইন পিয়াসি তিনি আমাদের মধ্যে আছেন। এঙ্গেজমেন্টের সময়ও আমরা তার মুখ থেকে ঈশ্বর বাক্য শুনেছিলাম এবং তিনি আজকেও আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আর আজকেও তিনি আমাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্যকে তিনি নিয়ে আসবেন। তিনি বর্তমানে কুশাগ্রাম আসানসোলে সেখানে প্রভুর কার্যে রত রয়েছেন, পরিচর্যা রয়েছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্থানে তিনি যান এবং তাকে ঈশ্বরের বাক্য থেকে ব্যাখ্যা করার জন্য, ঈশ্বরের বাক্যকে প্রচার করার জন্য বলা হয়। তিনি খুব সুন্দরভাবে আর আমাদের বাংলাতে নয়, হিন্দিতে, ইংরেজিতে ভাষাতে তিনি ঈশ্বরের বাক্য বলতে পারেন। তো আমরা খুব খুশি, we are so glad to have you brother and it is your time now। এখন আমরা তাকে অনুরোধ করতে চাই कि परमेश्वर के वचन से आप भी हम लोग को सेवकाई करें। Praise the Lord।
आप लोग खुश नहीं दिख रहे। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद। शादी है, थोड़ा हंसिए, मुस्कुराइए। हम लोग हंस रहे हैं। हम लोग हंस रहे हैं। हम लोग आप भी हंसना सकते। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। एक और बार आपके सामने परमेश्वर के वचन के साथ खड़े होने के लिए परमेश्वर ने सहायता और मदद किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि कहा गया, हमारे सभी सभाओं में परमेश्वर का वचन काफी ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि हर जगह परमेश्वर के वचन से बताया जाता है, परमेश्वर के वचन का प्रचार होता है और बहुत सुंदर तरीके से अच्छे अच्छे गीतों को हम सुन रहे थे, अच्छी अच्छी बातों को हम सुन रहे थे। और मैं उन सब लोगों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अच्छे अच्छे गीतों को गाया। और आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि दो बहुत सुंदर लोग यहाँ पर बैठे हैं, और यहाँ पर रवि है और यूनिस है, और इन दोनों के विवाह के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये हमारे लिए एक बहुत खुशी का बात है। उससे भी बढ़कर एक खुशी का बात यह है कि आज हमारे यहाँ पर हमारे आंखों के सामने एक सुसमाचार प्रचार करने वाला एक परिवार बनने जा रहा है। We are going to witness a evangelistic family in front of us. So it's a matter of great joy. ये हमारे लिए एक बहुत ही आनंद का बात है। और जैसा कि यहाँ पर कहा गया कि इनके सगाई के समय में भी मैंने यहाँ से खड़े होकर परमेश्वर का वचन सुनाया था, और आज फिर से मुझे आपके सामने खड़े होने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। टाइम आपके पास भी नहीं है, टाइम इनके पास भी नहीं है, और टाइम मेरे पास भी नहीं है, इसलिए बहुत कम शब्दों में मैं अपने संदेश को समाप्त करूंगा और फिर आगे का जो सेवकाई है उसमें हम लोग जाएंगे। आज यहाँ से जो बाइबल का भाग पढ़ा गया वो है इफिसियों की पत्री, उसका 5 अध्याय 22 पद से लेकर 33 पद तक। मैं फिर से आप सब लोगों का ध्यान उसकी ओर लेकर जाना चाहता हूँ। और जब सगाई में मैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन बांट रहा था, मैंने उनको बताया था कि क्या होना चाहिए हमारा उद्देश्य जब हम विवाह के बारे में सोचते हैं। और मुझे पता नहीं उन्होंने कितना ध्यान से सुना। शादी में कोई ध्यान से नहीं सुनता, क्योंकि उनके मन में और बहुत सारी बातें चल रही है। उसके बीच में हमारी बातें सुनने वाला शायद उनका टाइम है कि नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी हमें बोलना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा काम है। इसलिए परमेश्वर के वचन को वचन की ओर हम लोग जाएंगे। और यहाँ पर जिस प्रकार लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के हैं। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 22 पद में यहाँ पर जब पौलुस इफिसियों की पत्री 5 अध्याय को लिखता है, वो एक विशेष बात के बारे में यहाँ कह रहा है। वो परमेश्वर के बारे में, मसीह जीवन के बारे में बहुत सारी बातों को बताने के बाद यहाँ पर 5 अध्याय उसका 18 पद में वो कहता है कि पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हमारे दिन प्रतिदिन जीवन में हमें आत्मा से परिपूर्ण, यू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, हमें आत्मा से परिपूर्ण होकर चलना है। और उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है, द वेरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गॉडलीनेस इन द आईज ऑफ पॉल इज अ फैमिली लाइफ। वो एक पारिवारिक जीवन है। आत्मा से परिपूर्ण होने का जीवन का सबसे पहला सीढ़ी कहां से शुरू होता है? It's from the family। वो परिवार से शुरू होता है। इसलिए मुझे 15 मिनट यूनिस के लिए चाहिए और 15 मिनट रवि के लिए चाहिए। So we'll start ladies first, because Paul also does the same thing. He is also doing the same thing. He is talking about wife first. So ladies first। यहाँ पर पत्नियों से कहा गया है अपने अपने पति के, पत्नियों का आवाज नहीं आ रहा। क्यों आवाज नहीं आ रहा पता है? क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। आपके पति आपके साइड में बैठे हैं क्या? जरा अपने पतियों को देखो। हाँ, कहाँ है आपके पति लोग? अगर साइड में नहीं बैठे तो उनके बारे में जरा सोचिए। और आप बोल रहे हैं भैया, आप बोल रहे हैं इस आदमी के अधीन में रहना है, इस आदमी के अधीन में, ये कभी मेरा बात नहीं सुनता है, इसको कुछ भी नहीं आता है। हाँ, मैं इससे ज्यादा स्मार्ट हूँ, हाँ, मैं इससे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मैं इससे ज्यादा होशियार हूँ, ये कभी भी ध्यान नहीं रखता है। इसको कुछ भी बोल, एक बार 10 बार बोलना पड़ता है भैया इसके अधीन में रहना है। यूनिस, आपके साइड में
जो व्यक्ति बैठा है, बाइबल सेज आप आपके पति के अधीन में रहिए। नाउ परमेश्वर ने परिवार को बनाया। जब परमेश्वर ने परिवार को बनाया तब परमेश्वर ने एक ऑर्डर के साथ बनाया। परमेश्वर का ऑर्डर आप इस दुनिया के हर एक चीज में देख सकते हैं। जब परमेश्वर ने संसार बनाया, जब परमेश्वर ने चांद तारे और सितारे बनाए, सृष्टि बनाई, उस सब का काम करने का एक ऑर्डर है। देयर इज एन ऑर्डर इन एवरीथिंग व्हाट गॉड हैज क्रिएटेड। Similarly, when God created family, जब परमेश्वर ने परिवार को बनाया, उसमें भी एक ऑर्डर बनाया, उसने भी एक तरीका बनाया, और वो तरीका ये था। पौलुस अपने उससे कहता है, अपने कलीसिया के लोगों से और हम सब से कहता है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन में रहो। इसमें एक और बात जुड़ा हुआ है, इसमें कोई कंडीशंस नहीं है। हमको लगता है जब वो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा तब मैं सोचूंगी कि अधीन में रहना है या नहीं, है ना। जब वो मेरे हिसाब से काम करेगा तब मैं सोचूंगी कि अपने पति के अधीन में रहना है या नहीं। जब वो मेरा ख्याल रखेगा तब मैं सोचूंगी कि अपने अपने पति के अधीन में रहना है या नहीं। लेकिन पौलुस क्या कहता है, आप जरा उसका 24 पद को पढ़िए। 24 पद में इस प्रकार लिखा है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। कितने बात में? हर बात में। इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार लिखा है, इन एवरीथिंग। पहले माँ बाप जाते थे, लड़का लड़की को देखते थे और वही बोल देते थे इस तारीख को शादी है, और शादी हो जाता था। आप यहाँ पर जिनके बाल सफेद हैं उनसे पूछ सकते हैं कितने लोगों ने लड़की को देख के शादी किया है। शायद बहुत सारे यहाँ पर भी ऐसे होंगे जिन्होंने शादी से पहले अपना होने वाला पत्नी को देखा तक नहीं होगा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल पहले लड़के वाले जाते हैं, फिर लड़की वाले आते हैं, है ना, फिर नंबर एक्सचेंज होता है, फिर लड़का और लड़की, है ना, जियो का एंड टू एंड फ्री कॉलिंग लेके, है ना, जियो टू जियो जो फ्री होता है, ऐसा वाला सिम लेके रात को 10-10 घंटे 12-12 घंटे उसमें जीते हैं। हाँ, उसमें जीते हैं। मैंने भी किया है, मेरे पत्नी इधर ही है। मेरे पत्नी बोलते हैं शादी के बाद आपके पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, पहले बात करके खत्म कर दिया। अभी यूनिस को लगता होगा कि मैं रवि के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। मैं रवि को लगता होगा कि मैं यूनिस के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अभी बहुत कुछ जानने वाले हैं। शायद अभी तक आप दोनों ने एक दूसरे का अच्छा हिस्सा ही देखा होगा। नाउ यू आर गोइंग टू सी द रियल कलर। अभी जो सही रंग है वो अभी बाहर दिखने वाला है। शायद बहुत सारा बात ऐसा होगा यूनिस जो आपको रवि के बारे में और पसंद नहीं आए। तब आप बोल सकते हैं शादी से पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, अभी क्या हो गया तुमको? बाइबल बोलता है यूनिस हर एक बातों में अपने पति के अधीन। That should be the motto of your life. हर एक पत्नी का जीवन का सिद्धांत ये होना चाहिए। अगर परमेश्वर ने आपको एक पति दिया है तो वो कहता है कि अपने अपने पति के अधीन में रहो। दूसरा बात जो पत्नियों से कहता है वो ये है, उसका जो 5 अध्याय उसका लास्ट पद को हम पढ़ेंगे, 33 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर उसके आखिरी भाग में इस प्रकार लिखा है, और पत्नी भी अपने पति का भय, अपने पति का भय माने। बांग्ला में कैसे लिखा है? তথাপি তোমরাও প্রত্যেকে আপন আপন স্ত্রীকে তদ্রূপ আপনার মতো প্রেম করো। यस, लास्ट पद। কিন্তু স্ত্রীর উচিত हाँ। যেন সে স্বামীকে हाँ। ভয় করে। यस, भय करे लिखा है। लेकिन इंग्लिश बाइबल में
there is much more beautiful word. It says, wife, respect your husband. भाई मानना मतलब भूत है बोल के डर के भाग जाना नहीं. It says, wives, respect your husband. शायद वो रेस्पेक्ट के काबिल भी नहीं हो सकता है, शायद उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बाइबल सेज वाइफ यू शुड रेस्पेक्ट योर हस्बैंड. ये भी पत्नी के लिए बहुत मुश्किल का एक बात है ना. कुछ पत्नियां होती है जो हमेशा पति को क्रिटिसाइज करती है, हर एक बात में, वो अच्छा करे बुरा करे, हर एक बात में, है ना, वो कर 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 ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, तुमको ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उसको देखो वो कितना अच्छा है, ये उसको देखो ये क्या करता है, वो क्या करता है. बहुत बार में ऐसा होता है. बहुत सारे पत्नियां ये कान के पास दिन बिनाने वाला मच्छर जैसा होता है, उनका चालू रहता है. You should not do like that. Bible says respect your husband. कभी भी अपना पति का बुराई किसी और से नहीं करना है. Not even to your family, not even to your father and mother, not even to your friends. Never talk anything bad about your husband. आदमी लोगों का एक गुण होता है, यूनिस, खाने में नमक कम है तो वो लोग सह लेता है, लेकिन आदमी का जो अहंकार है, जब उसको कोई नॉक करता है तो वो उसको सहन नहीं करता. That's the way God has created man. ऐसा परमेश्वर ने आदमी को बनाया. If you keep on criticizing your husband, your family life will not be good. इसका मतलब ये नहीं कि आप चुपचाप रहो, आप सजेशंस दे सकते हैं, आप प्यार से बात कर सकते हैं, प्यार से आप उसको समझा सकते हैं. बाइबल नीति वचन उसका 25 का 24 में कहता है, एक झगड़ालू भी पत्नी के साथ बड़े महल में रहने से अच्छा है एक छत के कोने में रहना. पत्नियों, झगड़ालू मत, उससे आपका कोई फायदा नहीं. यूनिस, आपका कोई भी फायदा उससे नहीं होगा. रेस्पेक्ट योर वाइफ. कुछ लोग पति को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अपने दोस्तों में उसका बुराई. अरे मेरा पति है ना, वो रात को टाइम पे भी नहीं आता, बच्चों को भी मुझे संभालना पड़ता है ना, और खाना भी मुझे बनाना पड़ता है, वो तो बस सुबह बैग लेके निकल जाता है, उसका तो कोई अता पता नहीं है, कहाँ रहता है, क्या करता है, हमको कुछ पता नहीं है. शाम को दोस्तों के पास चले जाता है, वो कहीं खेलने चले जाता है, फिर रात होती है तब आता है और आके खाना मांगता है. ऐसे तो दूसरी लड़की बोलती है, अरे मेरा पति भी ऐसा ही है, अरे मेरे घर में भी ऐसा ही है, अरे मेरे घर में भी ऐसा ही है. Never do that. Never do that. Bible says, respect your husband. Respect your husband. कुछ लोग बुराई नहीं करते, सिर्फ प्रार्थना रिक्वेस्ट शेयर करते हैं, है ना. नहीं, मैं बुराई नहीं करती, ये प्रार्थना है. हाँ, ये आप मेरे पति के लिए प्रार्थना कीजिएगा, वो किसी काम के नहीं है ना, उनको कोई काम ढंग से नहीं होता है, उनको कुछ नहीं आता है, वो बहुत फालतू आदमी है. आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु उनसे बात करे. Never do that. Never share such prayer request. You will be disrespecting your husband. यहाँ पर बाइबल साफ तरीके से पत्नियों से बोलता है, submit to your husband and respect your wife. ये बाइबल का सिद्धांत है और पत्नियों से बाइबल ये बात उनसे कहना चाहता है. कुछ लड़कियां, कुछ पत्नियां होती हैं जो लड़के से वही बर्ताव करती है जैसे लड़के की मम्मी. आपको बुराई नहीं करना आंटी, हाँ, उसका मम्मी बनने की कोशिश मत करना. यूनिस, यू आर पार्टनर, यू बी लाइक अ पार्टनर. वो इतने दिन उनसे सुन रहा था, है ना, ये मत पहनो, ये मत खाओ, है ना, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, 6 बजे घर पे आ जाना, है ना, इतना बार किसी से मिलना नहीं है, वो क्यों तुम्हारा दोस्त है. यू डोंट बी लाइक अ मदर.
बी लाइक अ पार्टनर, बी लाइक अ फ्रेंड टुगेदर। आप उसके लिए एक दोस्त बनकर रहें। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट। और बाइबल एक और बात कहता है, वाइफ शुड प्लीज हर हस्बैंड। हर एक बात में आपका एक ही सिद्धांत होना चाहिए, आपको अपने पति को पसंद रखना है। Two things importantly Bible says to wife, submit and respect। ऐसा काम करने से आप आपके परिवार का बहुत सारा प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। So this was for Eunice and all the wives those who were sitting here। ये यूनिस के लिए था और उन हर एक पत्नियों के लिए था जहां जो यहां पर बैठे हैं। अब we'll move to रवि। अब रवि का बारी। Now what does Bible says to husband? उसी बात को हम यहाँ पर देखते हैं जब हम इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 25 पद को जब पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, हे पतियों अपने अपनी पत्नी से अभी पतियों का आवाज भी नहीं आ रहा। अपने अपने पत्नी से क्या करो? प्रेम रखो। लव योर वाइफ, लव योर वाइफ। लेकिन क्या है लव का मतलब? What do you mean by love? Now Paul goes little bit in depth। पर पौलुस यहाँ पर एक थोड़ा और गहराई में जाकर उसको समझाता है क्या है उस प्रेम का मतलब। यहाँ पर पौलुस कहता है 5 अध्याय 25 पद में कि हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, दिस इज इंपॉर्टेंट, अपने आप को उसके लिए दे दिया। यूनिस अंडरलाइन कर रहा है। यहां पर पतियों से कहा गया है अपने पत्नियों से प्रेम करो, लेकिन कैसे? द फर्स्ट थिंग पॉल सेज, मसीह को देखो जैसे मसीह ने प्रेम किया। मसीह ने कैसे प्रेम किया? उसने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। लव ऑफ अ हस्बैंड शुड बी अ सैक्रिफाइसिंग लव। एक पति का जो प्रेम है वो बलिदान का प्रेम होना चाहिए। यू शुड गिव एवरीथिंग टू योर वाइफ, एवरीथिंग। पतियों के लिए ये बहुत मुश्किल है। पतियों के लिए पतियों का पैर का दर्द इंपॉर्टेंट है, पत्नी का नहीं। पतियों के लिए पति का पेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पत्नी का पेट इंपॉर्टेंट नहीं। पतियों के लिए पति का दोस्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है घर से ज्यादा। नो, क्राइस्ट सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग फॉर द चर्च। प्रभु यीशु मसीह ने उसके विषय में फिलिपियों की पत्री में लिखा है, स्वर्ग की महिमा को छोड़कर वो इस संसार में उतर कर आया। He gave up everything, all the glories। रवि, आपको बहुत कुछ अपने जीवन में सैक्रिफाइस करना होगा। कल तक आपका दोस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, शायद अब से वो नहीं हो। कल तक आपको घूमना फिरना शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, अब शायद नहीं। कल तक आपके लिए आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट था, शायद अब नहीं हो। Here it says, the love should be a sacrificial love। वो जो प्रेम है जिसके विषय में पौलुस यहाँ पर कहता है वो बलिदान वाला प्रेम है। दूसरा बात यहाँ पर पौलुस कहता है कैसे प्रेम करें। उसका 29 पद को जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर लिखा है, क्योंकि किसी ने भी कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण किया। The love means nourishing and cherishing your wife। The love here means nourishing and cherishing। ये यूनानी भाषा में लिखा है। अगर ग्रीक भाषा में, इसकी मूल भाषा में अगर हम उस बात को पढ़ते हैं, वहां पर एक चित्र रूपी बात लिखा है। वो चित्र ये है जैसा एक मुर्गी अपने अंडे के ऊपर बैठकर उसको सेकती है, उसी उद्देश्य के साथ यहां पर लिखा है नरिश एंड चेरिश। एक मुर्गी अपने अंडे के ऊपर चढ़कर कैसे उसको संभालती है, कैसे उसको सेकती है। उसके ऊपर चढ़ के बैठना मत,
Rather, he says, Paul says, as you care yourself, handle with care. Handle with care. जैसे एक मुर्गी अपने अंडे को सेक कर उसको संभाल कर जब तक उसमें से नए चूजे नहीं निकलते वो उसको बहुत सारे चीजों से संभाल कर रखती है। वहां पर बहुत सारे दुश्मन हैं जो उस अंडे को खाना चाहते हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं, उसको लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन वो मुर्गी उसको संभाल कर रखती है। इन द सेम वे द लव ऑफ हस्बैंड शुड बी अ लव दैट चेरिशेस, जो उसका पालन पोषण करता है। इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली। The third thing that Paul says, what do you mean by love? The third thing that Paul says here is this, verse 26, उसका 26 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वर्स 27, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो। हस्बैंड, लव योर वाइफ। कैसे होगा? बाय कीपिंग अप द प्यूरिटी ऑफ योर फैमिली। आपका परिवार का जो पवित्रता है उसको कायम करते हुए पति को अपने पत्नी से प्रेम करना है। पति को पवित्रता को कायम करना है। रवि एक सुसमाचार प्रचारक है। आपका सुसमाचार प्रचार बाहर से ज्यादा आपके अंदर होना है, आपके परिवार में होना है। यू आर नॉट जस्ट द लीडर ऑफ अ चर्च, यू शुड बी अ स्पिरिचुअल लीडर, अ स्पिरिचुअल मेंटर ऑफ योर फैमिली। आप सिर्फ एक कलीसिया के अगुवे नहीं, आप आपके परिवार के आत्मिक अगुवे भी हैं, आप आपके परिवार के इवेंजलिस्ट भी है, आप आपका परिवार का पास्टर भी है, आप आपका परिवार का एल्डर भी है। The need of your spiritual need of your family should be taken care by you. Paul talks about the sanctity of the family. वो पवित्रता जो परिवार में होना चाहिए, वो आत्मिक उन्नति जो परिवार में होना चाहिए। अगर आपका परिवार आत्मिक रूप से पीछे जा रहा है, आपका परिवार अगर आत्मिक रूप से तितर बितर है, तो उसका पूर्ण जिम्मेदारी किसका है? हस्बैंड्स, यू आर रिस्पॉन्सिबल। जितने भी पति यहां पर बैठे हैं, आप उसके लिए जिम्मेदार हैं, आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। Now, fourth thing that Paul says, love your wife, and this love is unconditional. इसमें कोई शर्त नहीं है। मैं तभी प्यार करूंगा जब तू अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी, मैं तभी प्यार करूंगा जब तू ऐसा करेगी, वैसा करेगी। आज आपके पास उसको प्यार करने के लिए बहुत सारा रीजन है। आप दोनों जवान हैं, सुंदर है, वो भी सुंदर है। यू मे हैव सो मेनी थिंग्स टू लव, लेकिन धीरे 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 रीजन कम होता जाएगा। कल धीरे 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 बॉडी बुढ़ापे की ओर जाएगा। वी मे हैव कंडीशंस, नहीं तू मेरे मम्मी जैसा खाना नहीं बनाती, तेरा चाय मेरे मम्मी जितना टेस्टी नहीं है। जब तू मेरे मम्मी जितना टेस्टी खाना बनाएगी, मैं तुझसे प्यार। दिस लव हैज नो कंडीशन, नो कंडीशन अप्लाइज। क्यों? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मसीह के विषय में लिखा है, जब हम पापी थे मसीह ने हमसे प्रेम किया, जब हम अधर्मी थे मसीह ने हमसे प्रेम किया। हमारा अच्छापन देखकर मसीह ने हमसे प्यार नहीं किया, बल्कि हमारे बुराई में मसीह ने हमसे प्रेम किया। रवि, दिस लव इज अनकंडीशनल। Last thing that I would like to say, when you love your wife, पत्रस की पत्री में इस प्रकार लिखा है। पत्रस की पत्री को आप मेरे साथ निकालिए। पहला पत्रस की पत्री, उसका 3 अध्याय 7 पद। पहला पत्रस की पत्री, उसका 3 अध्याय 7 पद। यहां पर हम इस प्रकार देखते हैं, वैसे ही पतियों तुम भी बुद्धिमानी के साथ पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। हिंदी में लिखा है बुद्धिमानी के साथ, इंग्लिश बाइबल में लिखा है विद अंडरस्टैंडिंग। लिव योर लाइफ, लिव योर मैरिटल लाइफ विद अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे पति लोग हैं
जो अपना पत्नी को समझते नहीं, है ना? उसमें पतियों की गलती नहीं है, पत्नी चीज ही ऐसा है, कभी समझ में आता नहीं है, कभी समझ में नहीं आता है ना? ऐसा कहते हैं परमेश्वर ने सृष्टि बनाया, परमेश्वर ने सृष्टि बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने विश्राम किया। परमेश्वर ने स्त्री को बनाया, फिर ना परमेश्वर ने विश्राम किया ना मनुष्य ने विश्राम किया। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हर, क्योंकि वो लोग बहुत इमोशनल है। पीटर ऑल्सो सेज दे आर वेरी फ्रजाइल। वो लोग बहुत, पतरस यहां पर क्या बोलता है, वो लोग कैसे हैं? वो लोग स्त्री को निर्बल पात्र है। देयर इमोशन फ्लक्चुएट्स लाइक एनीथिंग। उनका जो अभी खुशी है तो कल मतलब तुरंत ही उनका मूड बदल जाता है, तुरंत गुस्सा हो जाता है। दे डोंट नीड एनीथिंग सॉलिड टू क्राई। उनको कोई कठोर कारण का जरूरत नहीं है रोने के लिए। वो किसी भी बात पर रो सकते हैं, किसी भी बात पर उनका आंसू बाहर आ सकता है? आपको लगता होगा यार ये क्यों इतना टेंशन लेती है, ये क्यों बार बार रो रही है, क्या हो गया ऐसा जो ये रो रही है? They are like that. They are fragile. Husband, Ravi, it is your responsibility to understand her likings, to understand her feelings, to understand her emotions. Life will be very difficult ahead of you. आज आपको सब ग्रीन लग रहा है, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो बदलने वाला है। ऐसे 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 बोलते हैं when the rubber meets the road, friction comes. कल जब आप जीना शुरू करेंगे तब वो मुश्किल होने वाला है। Understand the situation. You had to take the lead. जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर ने हवा से आकर नहीं पूछा, बल्कि आदम से पूछा, आदम तू कहां है? Husbands, love your wife. Now, this is the key to a successful marital life. एक अच्छा वैवाहिक जीवन का चाबी यही है कि पत्नी पति के अधीन में रहे और पति पत्नी से प्यार करे। There is nothing greater, Bible talks about it. उससे कुछ बढ़कर परमेश्वर का वचन हमको नहीं बताता है। बहुत सारे लोग हैं जो शादी के टाइम कुछ समय तक उनका बहुत अच्छा रहता है, लेकिन धीरे 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 वो खत्म होने लगता है। आज बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को, मुझे माफ करना, बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को मैं जानता हूं, पत्नी एक कमरे में और पति दूसरा कमरे में सोता है। क्यों है ऐसा? क्यों है ऐसा? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को मैं जानता हूं, आफ्टर एन एज पता नहीं क्या होता है, सोने का कमरा दोनों का अलग अलग हो जाता है। बिकॉज कहीं ना कहीं वो जॉय, अब तो बूढ़ा हो गया ना, अब ये सब नहीं है। वो आपका पत्नी है, शी इज योर वाइफ फॉर एवर, ही इज योर हस्बैंड फॉर एवर। परमेश्वर ने ये रिश्ता बनाया है। There is a purity in this relationship. इस वैवाहिक रिश्ते का एक पवित्रता है, इस वैवाहिक रिश्ते का एक मतलब है, और उन सब का मतलब से सबसे उत्तम जो बात है वो ये है, आपका परिवार परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार करना है। कैसे करेगा? यहां पर इफिसियों के पत्री 5 अध्याय उसका आखिर में इस प्रकार लिखा है, जब पत्नी पति के अधीन में रहेगी, जब पति पत्नी से प्रेम करेगा, ये बात उस टाइम, यहां पौलुस कहता है ये भेद तो बड़ा है, पर मैं ये मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी के समान, अपने समान प्रेम रखे और पत्नी अपने पति का भय माने। जब यूनिस आप रवि के अधीन में रहेंगे, जब उससे प्यार करेंगे, द डार्क वर्ल्ड विल सी क्राइस्ट थ्रू योर फैमिली। ये अंधकार से भरा हुआ दुनिया, पाप से भरा हुआ दुनिया मसीह यीशु को देखेगा। आज मसीहत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है,
अगर आप मेरे बात से इनकार कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज मसीहत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारा परिवार मसीह का सुसमाचार को दूसरों को दिखा नहीं पा रहा है। हमारे जीवन का जो पारिवारिक मूल्य है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। संसार में जो परिवार का इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। गॉड हैज गिवन यू दिस, इसको आपको संभाल कर। कल हम एक बड़े विवाह की ओर जा रहे हैं। बाइबल स्वर्ग में होने वाले विवाह के विषय में भी कहता है, एक बहुमूल्य, एक बहुत ही उत्तम विवाह के विषय में जो स्वर्ग में होने वाला है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह के विश्वास कर उसके वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले हर एक व्यक्ति उस विवाह में शामिल होंगे। क्या आप उस विवाह में शामिल होंगे? अगर आप उस विवाह में शामिल होना चाहते हैं तो बाइबल कहता है आपको अपने पाप के जीवन से मन फिराना होगा। पाप को छोड़कर आपको प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार करना होगा, क्योंकि वो आपके पापों के लिए इस दुनिया में आया। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ताकि वो आपको आपके पाप से बचा सके, ताकि वो आपको अनंत जीवन दे सके। हम उस विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं। मेरे प्रचार को सुनने वाले, अगर यहाँ पर ऐसा कोई भी है जिसने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, तो आज आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें। वो आपको अनंत जीवन दे सकता है। मसीह का प्रेम वो अनमोल है, और उसके लिए, उसको बताने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण जो पौलुस हमारे सामने रखता है वो एक वैवाहिक जीवन है। इट इज इंपॉर्टेंट इन द साइट ऑफ गॉड। हम आने वाले जीवन में यूनिस के लिए और रवि के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा। ब्रदर शाइन को धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर का वचन को हमारे बीच में लाने के लिए। और जरूर परमेश्वर हमसे बातें किए, विशेष करके रवि और यूनुस से। आइए अभी हम लोग और एक गीत को गाएंगे, और एक गानটা আমরা বাংলাতে গাইবো, তোমার আশিস দাও গো প্রভু এ নব দম্পতি রে। আমাদের যে সংশিট আছে তার 4 সংখ্যার গান, এটা আমরা গাইবো। এ নব দম্পতি রে, তোমার আশীষ দাও গো প্রভু, এ নব দম্পতি রে, বাঁধিয়া রাখিও চিরদিন তারে তোমার প্রেমের ডোরে। তোমার আশীষ দাও গো
বেঁধে থাকিও মগন, বাধ্য যেন থাকে সর্বক্ষণ তোমার প্রেমে মধুর আনন্দে, তোমার প্রেমে মধুর আনন্দে। হৃদয় দিও গো ভরে, তোমার আশীষ দাও গো প্রভু, এ নব দম্পতি। তোমার আশীষ দাও গো প্রভু, এ নব দম্পতি রে। রাখিও চিরদিন তারে তোমার প্রেমে ডোরে, বাঁধিয়া রাখিও চিরদিন তারে তোমার প্রেমে ডোরে। তোমার আশীষ দাও গো প্রভু, এ নব দম্পতি। এখন আমরা অনুরোধ করব আমাদের এই মণ্ডলীর বারাকর মণ্ডলীর প্রাচীন মাইকেল মধুসূদন দাসকে আসার জন্য এবং প্রার্থনায় আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আসুন আমরা প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় প্রভু যিশু, আমরা তোমার চরণে কৃতজ্ঞ চিত্তে ধন্যবাদ দিই। সত্যি প্রভু, এই আনন্দের দিনে বিশেষ করে আমরা যখন দেখছি একটা ছেলে একটা মেয়ে যখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে প্রভু, আমরা তোমার চরণে কৃতজ্ঞ চিত্তে ধন্যবাদ দিই প্রভু। এই কাজ কিন্তু তুমি করে থাকো প্রভু, আমরা তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু। এই মঙ্গলের কাজ, এই আশ্চর্য কাজ, এই মহান কাজ প্রভু তুমি আমাদের পরিবারে করে থাকো প্রভু, তাই তোমায় ধন্যবাদ দিই। বিশেষ করে প্রভু তোমার বাক্যের জন্য ধন্যবাদ দিই। সত্যি প্রভু তুমি সাহায্য করো, যে বাক্যের নির্দেশগুলি আছে প্রভু, এই নির্দেশগুলি প্রভু মেনে চলতে প্রভু আমাদের প্রত্যেকটি দম্পতিকে তুমি সাহায্য করো দয়াময় দয়াল যিশু। কারণ আমরা জানি প্রভু তোমার বাক্যের নির্দেশ না পালন করলে আমাদের কোনোদিনও পরিবারে সুখ আবার শান্তি আসতে পারে না প্রভু, তাই তুমি সাহায্য করো দয়াময় দয়াল যিশু। বিশেষ করে এই ছেলেকে এবং মেয়েকে তুমি আশীর্বাদ করো, উভয় পরিবারকে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু। কিন্তু তোমার বাক্য বলেছেন তাকেও তুমি প্রচুর আশীর্বাদ করো। আর এইভাবে প্রভু তোমার বাক্যের দ্বারাতে আমরা যে বিভিন্ন পরিবার আমরা যে সঞ্জীবিত হয়েছি প্রভু, আর তার জন্য আমরা তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু। তুমি সাহায্য করো আগামী বিবাহিত জীবনে প্রভু, আমরা যেন প্রত্যেকে তোমার বাক্যের আদেশগুলি, বাক্যের নির্দেশগুলি মেনে চলতে পারি প্রভু। এইগুলিতে তোমার সব গৌরব মহিমা সমাবেশ ধন্যবাদ। আমি মনে করছিলাম যে কারেন্ট চলে গেছিল, কি হবে কি হবে। তবে ঈশ্বর মনে একটা কথা বললেন, যখন প্রথম বিয়ে হয়েছিল তখন কারো কোনো কারেন্ট ছিল না, ঈশ্বর ছিল আর ছেলে মেয়ে ছিল, আর আরামসে বিয়ে হয়েছিল না, আদম হাওয়া এদম বাগান। তার জন্য আমরা অনেকজন আছি, তা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। আমাদের কারেন্ট চলে এসেছে, যারা পাওয়ারে কাজ করলেন তাদেরকে ধন্যবাদ দিতে চাই। এখন আমরা আজকে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে সময় আর যে বিয়ের আসল অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানে আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি। তো আমরা শান্ত হই। হে প্রেমাস্পদেরা, ঈশ্বরের সামনে এই পুরুষ ও রমণীকে পবিত্র পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। এই শুভ সম্বন্ধ স্বয়ং ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং আমাদের কাছে তা প্রভু যীশু খ্রিস্ট ও তাহার মণ্ডলীর নিগুড় যোগের নিদর্শন স্বরূপ। গালিলের কান্না নগরে উপস্থিত থেকে এবং সেই উপলক্ষে নিজের সর্বপ্রথম অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে প্রভু যীশু স্বয়ং বিবাহ সম্বন্ধকে সুসমান্বিত করেছেন। শাস্ত্রেই বিবাহ সব মানুষের কাছে আদরণীয় বলে বর্ণিত হয়েছে। এই কারণে লঘু চিত্তে ও বিহিত বিবেচনা না করে কারো বিবাহ করা উচিত নয়, বরং শ্রদ্ধা, বিবেচনা ও সংযমের সঙ্গে এবং বিবাহ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ভালোভাবে চিন্তা করে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য।
ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী মানুষের বংশবৃদ্ধি এবং ঈশ্বরের ভয়ে ও তার পবিত্র নামের গৌরবের জন্য সন্তান লালন পালন করা হলো বিবাহ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্দেশ্য। এর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো এই যে ঈশ্বর প্রদত্ত মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও কামনাগুলি যেন পবিত্র হয় ও সৎ পথে পরিচালিত হয় এবং এই পবিত্র আহ্বানে আহত ব্যক্তিরা যেন নির্মল জীবন যাপন করতে সমর্থ হয়। সম্পদে ও বিপদে পরস্পরকে সঙ্গ, সাহায্য ও সান্ত্বনা বিধান করাই হলো এর তৃতীয় উদ্দেশ্য। ওকে, আমি মন্ডলীর জন্য বলতে চাই, এই পূর্ণ বিবাহে সম্মিলিত হওয়ার অভিপ্রায়ে এই দুইজন রবিকান্ত শেখর এবং ইউনিস শাহ তারা এখানে উপস্থিত হয়েছে। অতএব যদি কেউ এদের সম্মেলনের বিপক্ষে আইনসঙ্গত ও প্রকৃত কোনো প্রতিবন্ধকতা প্রদর্শন করতে পারেন তাহলে তিনি তা এখনই প্রকাশ করুন, তা না হলে এরপর চিরকাল এ সম্বন্ধে নীরব থাকতে হবে। ধন্যবাদ। আমি রবি আর ইউনিসকে বলতে চাই, ভীষণ বিষাদ দিনে যখন প্রত্যেকের হৃদয়ের গুপ্ত বিষয়গুলি প্রকাশিত হবে তখন তোমাদের উত্তর দিতে হবে। অতএব তোমাদের দুজনকেই আমি দৃঢ়রূপে বলছি, আইন অনুসারে অসঙ্গত তোমাদের বিবাহের কোনো বাধা যদি তোমাদের জানা থাকে তাহলে এখনই তা স্বীকার করো, কারণ অবশ্যই মনে রাখবে ঈশ্বরের বাক্য অমান্য করে যারা সম্মিলিত হয় ঈশ্বর তাদের সংযুক্ত করেন না এবং তাদের সম্মিলনও বিধিসঙ্গত হয় না। থ্যাংক ইউ। তুমি উঠে দাঁড়াও। ओके, रविकांत शेखर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। श्रीमान रविकांत शेखर, क्या तुम इस औरत यूनिस शाह को अपना विवाहित स्त्री होने के लिए ग्रहण करते हो और ये वादा करते हो कि उसके साथ परमेश्वर का व्यवस्था अनुसार विवाह के पवित्र दशा में रहोगे? क्या तुम बीमारी तंदुरुस्ती में उसे प्रेम करोगे और उसका अपने पास से पृथक ना करोगे और सब औरों को छोड़कर जब तक तुम जीते रहो उसी के साथ रहोगे? हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। তোমাকে বলছি, কুমারী ইউনিস শাহ, তুমি কি রবিকান্ত শেখরকে তোমার স্বামী রূপে গ্রহণ করে পূর্ণ বিবাহের পূর্ণ অবস্থায় ঈশ্বরের বিধান অনুসারে এর সঙ্গে একত্র বসবাস করবে? তুমি কি এর সুস্থ বা অসুস্থ অবস্থায় একে প্রেম, আদর, সান্ত্বনা, রক্ষা ও প্রতিপালন করবে? তুমি কি একে প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্পণ করবে এবং যতকাল উভয়ে জীবিত থাকবে অন্য সবাইকে পরিত্যাগ করে কেবল এরই সঙ্গে বসবাস করবে? থ্যাংক ইউ। কন্যা সম্প্রদান, কন্যা সম্প্রদান। যেটু
আমরা ঈশ্বর ও সমস্ত মণ্ডলীর সাক্ষাতে শ্রী রবিকান্ত শেখর আমাদের কন্যা কুমারী ইউনিস শাহকে তোমার হাতে সমর্পণ করছি। रवि, तुम बोलो। मैं उनको बोलिए। ठीक है। हाँ, बोले मैं रविकांत शेखर सुश्री यूनिस शाह तुझको अपना विवाहित स्त्री ग्रहण करता हूँ और इस दिन से जब तक हम दोनों जीते रहे भलाई बुराई में अमीरी और गरीबी में बीमारी तंदुरुस्ती में मैं तुझसे मिला रहूंगा तुझे प्रेम करूंगा और तेरी खबरगिरी करता रहूंगा इसका मैं विश्वास से पिता पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से प्रतिज्ञा करता हूँ। यूनिस तुम भी बोलो। इन्हें तो बोलो, रवि को बोलो। आमी जोरे बोलो। आमी यूनिस शाह श्री रविकांत शेखर তোমাকে ঈশ্বরের পূর্ণ বিধান অনুসারে আমার স্বামী রূপে বরণ করছি। আজ থেকে সুখে দুঃখে সম্পদে অভাবে স্বাস্থ্যে রোগে মৃত্যুর বিয়োগ পর্যন্ত আমি তোমাকে ভালোবাসবো, তোমাকে প্রতিপালন করব, তোমার অধীনে বাধ্য হয়ে থাকবো ও তোমার তত্ত্বাবধান করব। এই জন্য আমি তোমার কাছে পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের নামে এই প্রতিজ্ঞা করছি। রিং বিবাহের আংটি আন্তরিক বন্ধনের প্রত্যক্ষ বাইরের নিদর্শন স্বরূপ এবং এই অনুষ্ঠানের একটি স্মারক মাত্র। आराम से ना
इस विवाह के स्मारक के रूप में मैं तुझको ये अंगूठी प्रदान करता हूँ। इसके द्वारा मैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से तुझको मेरे सारे विषय संपत्ति के हिस्सेदार प्रतिज्ञा करता हूँ। आमीन। मिनी बोलो, इसको हाथ ताली हो। আমিও তোমার এই আংটি বিবাহের স্মারক রূপে গ্রহণ করছি। আবার আমারও উপহার স্বরূপ এই আংটির দ্বারা তৃতীয় ঈশ্বরের নামে আমি তোমাকে আমার যাবতীয় বিষয় সম্পদের অংশীদার বলে স্বীকার করছি। আমেন। আমরা প্রার্থনা করি। নিত্যস্থায়ী ঈশ্বর, সব মানুষের স্রষ্টা ও পালনকর্তা, সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রসাদ ও অনন্ত জীবনদাতা, তোমার দাস ও দাসী এই পুরুষ ও স্ত্রীকে তোমার নামে আশীর্বাদ করি। এদের উপরে তোমার আশীর্বাদ বর্ষণ করো, যেন ইসহাক ও রেবেকা যেমন বিশ্বস্ত রূপে একসঙ্গে বসবাস করেছিল, তেমনি এই ব্যক্তিরা যেন পরস্পরের প্রতি কৃতজ্ঞ